past 2 decades. One is the econometrics part of it. That is basically the calculations and the predictions and everything that is based on regression. So that's a very quantitative area which has emerged. And the other area that has emerged a lot is behavioral economics. Now that is something that is happening over the past decade or so. The Nobel Prize also went for it, and you have the nudge theory and various like the game theories and the various types of game theories and stuff like that. So yeah, basically these are the two areas which have emerged. Now these are two, you can say, dialectically opposite. Should I be using the word dialectics here? I don't think so. Like, but yeah, they are at two very different spectrums of research when you talk about now. As teachers, especially from India, where we are not doing a lot of good research, we tend to take in a lot of secondary data, and we try to like it's always like. It's sort of a reverse engineering that is happening in our research, that we are first collecting the data. We look at the data sources that are available. We see what the data is there, and then we come to the objectives that can be framed on those data that fits in that data, and then we come to the research problem, and then we try to do some research. और ये मेरे ख्याल से शायद ये हमको सिखाया भी गया है, तो वो एक रहा है हमारे साथ कि हम शायद वो करने लगे हैं। और तो हम जो है ज़्यादा आंकड़ों पे ध्यान देते हैं, और हम ये ध्यान देते हैं कि बच्चों को स्टैटिस्टिक्स आती है कि नहीं आती है, इकोनोमेट्रिक्स आती है कि नहीं आती है। और ये मैं बार-बार कह रही हूँ, ये मैं आपको अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य से बात कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग सामाजिक विज्ञान के अलग-अलग हिस्से से हैं, तो हो सकता है आपके उसमें कुछ अलहदा होता होगा हमारे इससे। दूसरा जो एक बहुत ज्यादा एक रिसर्च का एरिया अभी पिछले कुछ सालों में, मतलब वो पहले से भी था पर अभी शायद ज्यादा उस पर बात हुई, क्योंकि जब अभिजीत बैनर्जी को और एस्थर डफलो को जब मिला नोबेल मिला, तो वो आरसीटी की जो बात हुई, जो कि बेसिकली साइंस में यूज होता था, आपने इसमें भी आप लेकर आ गए, सोशल साइंसेस में भी लेकर आ गए हैं। तो ये यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कैसे आप सोसाइटी में किस तरीके से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी में किस तरीके से काम कर रहे हैं, और फिर आप मतलब आप जो एक नॉर्मल तरीका होता है कि आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप उसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं और फिर सारा कुछ करते हैं। तो वो आपके पास दो चीजें हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दोनों ही चीजें यूज हो रही है। क्वालिटेटिव रिसर्च बहुत ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अलग होता है, मुश्किल तो नहीं होता है, पर हाँ थोड़ा सा अलग होता है हमारे पास उससे। तो ये एक basically this is the foundation on which we are going to speak for the next few, like, for an hour or so. Now, the first case that I have taken here, this is the Hamletian dilemma of RBI. Now, most of us have read Hamlet, Shakespeare's one of the greatest like plays that he has written about on, like Hamlet. And there's a very famous quote from Hamlet which says, "To be or not to be." And the Hamilton dilemma of the RBI is to what to do with the monetary policy. So should they be tightening up, or should they be loosening up the monetary policy? Now, I have not been able to expand it. This is the basic idea, and then, of course, we can discuss and we'll see how it goes about it. Now, the pandemic has it is both it has given rise to both a demand side and a supply side problem. Now, when this demand side and the supply side problem has come up, okay, before I proceed further, is it fine with me continuing fully in English, or do you want me to be bilingual? I should have been asking this previously, but fine. दोनों भाषा में बोलूं, केवल अंग्रेजी बोलूं, केवल हिंदी बोलूं, जैसा आप लोग को ठीक लगे प्लीज बताएं मुझे, तो मैं उस हिसाब से प्रोसीड।
जी जी शैलन दोनों जी, में कर दीजिएगा। दोनों में कर दूं, ठीक ठीक, थैंक यू। तो ये जो बेसिकली ये जो हम बात कर रहे हैं आरबीआई का, ये जो ये पैंडेमिक में जैसे मैं कह रही थी कि इट्स बोथ अ डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड प्रॉब्लम। नाउ इन्फ्लेशन हैज कम अप लाइक पिछले कुछ महीनों में, हम यदि आप सीपीआई का डेटा देख रहे होंगे, जिसमें खासकर फूड प्रोडक्ट्स, क्योंकि उसका उसका भार भी ज्यादा है, वेट भी ज्यादा है उसमें सीपीआई इंडेक्स में, तो वो it is constantly rising, and the food basket has shown a big increase in the prices. Now, you have on one side there has been supply shock, there has been fall in the demand, so that वो मांग जो है वो नहीं है बाजार में। अभी आप किसी भी बाजार में चले जाइएगा तो आपको एक सुस्ती सी दिख रही है। ये जो दो त्योहार गए बड़े, दशहरा दिवाली, उसके बावजूद भी जो है वो जो जिस तरीके से एक रौनक होती है बाजार में, वो रौनक नहीं है इस वक्त। और आप किसी भी से बात कर लीजिए, चाहे रेडी वाले से बात करिए, चाहे मॉल के किसी दुकान वाले से बात करिए, और वो आपको यही बताएगा कि नहीं है, बिजनेस फुटफॉल्स उस तरीके के नहीं हो रहे हैं। तो पर इन्फ्लेशन हो रहा है, दाम जो है वो बढ़ रहे हैं, जो कि बेसिकली सप्लाई साइड का के कारण हो रहा है। सप्लाई जो कंस्ट्रेंट्स हुए हैं उस कारण से इस बार जो है वो इन्फ्लेशन होकर आया है। आरबीआई ने इस पूरे दौरान जो है अप्रैल महीने से अपने रेट्स में काफी कुछ चेंज किया। उन्होंने रेपो रेट चेंज किया, उन्होंने रिवर्स रेपो रेट चेंज किया, जो है आपका जो मार्जिनल वो होता है, एमएसआर होता है, और ये जितने भी रेट्स होते हैं, बैंक रेट है, सीआरआर, एसएलआर, सारे चीजों को उन्होंने चेंज किया। और यदि मैं गलत नहीं हूं तो मेरे ख्याल से रेपो इस वक्त 4 चल रहा है, और रिवर्स रेपो जो है वो 3.43 चल रहा है। हम आरबीआई में आप देख सकते हैं कि क्या रेपो रेट और रिवर्स रेपो क्या चल रहा है। तो ये जो पूरा है, अब ये मॉनेटरी पॉलिसी में इन्होंने क्या किया कि शक्तिकांत दास जो हमारे गवर्नर हैं, उन्होंने जुलाई 2020 में एक अपने भाषण में बताया था कि 9.57 ट्रिलियन रुपीस जो हैं वो अर्थव्यवस्था में डाले जा चुके हैं। तो अलग अलग तरीके से चीजें की गई है। रिवर्स रेपो रेट इस वक्त 3.35 चल रहा है, और रेपो रेट 4 चल रहा है। तो अभी जो है मॉनेटरी पॉलिसी में ये किया गया कि मॉनेटरी पॉलिसी से आपने कोशिश कर रहे हैं कि आप पैसा जो है, लिक्विडिटी, तरलता जो है वो बनी रहे अर्थव्यवस्था में। और देयर इज आल्सो लाइक व्हाट द सेंट्रल बैंक हैज बीन ट्राइंग टू डू इन केस ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज the MSME sector is being given a lot of push, and there has been like there was this loan moratorium which was given initially for 3 months, and then it was further increased to by 3 more months. Then money was being given, the credit is being given at a very less rate, which is very much visible from your repo and the reverse repo rate. Now, one thing which is very interesting here, though I have not written it there, I should have. अभी जो एक चीज बड़ी मजेदार आप कह सकते हैं जो देखने को मिली है कि बैंक्स ने करीबन 10 ट्रिलियन, 8 से 10 ट्रिलियन रुपए जो है वो अपने आरबीआई के पास रखा है रिवर्स रेपो में। मतलब वो उनको उस पे केवल 3.35% पे ब्याज मिल रहा है। 3.43 था, फिर उसको और कम करके 3.35% कर दिया गया। तो 3.35% रेट मिल रहा है उस पे केवल, और वो पैसा जो है वो पार्क है बैंक्स का आरबीआई के पास। करीबन 8 से 10 ट्रिलियन रुपए है जो है उनके पास। बीच में वो थोड़ा सा कम हुआ था। अब इसका मतलब ये है कि बैंक्स अपना पैसा नहीं देना चाह रहे हैं। लाइक बैंक्स आर नॉट रेडी टू गिव आउट लोन्स। आरबीआई इज pushing the banks, like it is the lowest that they have gone, and they are pushing the banks to give more loans.
अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है। इन्फ्लेशन जो है, जो टारगेटिंग हमने 2015 में हमने इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग को अपनाया था, जिसमें कहा गया था कि 4% होना चाहिए और उसमें प्लस माइनस 2%, मतलब आपने जो लोअर विंडो और अपर विंडो रखी थी वो 2% से 6%, आपने कहा कि भाई 2% से 6% तक आपका इन्फ्लेशन आप मूव कर सकते हैं। अब ये इन्फ्लेशन का है, तो इन्फ्लेशन अमूमन अभी तक तो काफी हद तक इन्होंने किया था, पर 2000 मतलब जब ये 2015 से लागू हुआ था उसके बाद से तो ये काफी हद तक सही चला था इन्फ्लेशन का। 2019 से इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं वो, और अब बीच में बस अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से सितंबर महीने में 5 पॉइंट समथिंग आया था इन्फ्लेशन का रेट, उसके बाद वापस से ऊपर चला गया है। तो ये पूरा ये एक केस मैंने आपको बताया, ये एक पूरा परिदृश्य है इस वक्त। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस पे रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और यदि हम इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो क्या हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए, और क्या मेथोडोलॉजी हमें अपनानी चाहिए, क्यों अपनानी चाहिए। तो अब ये जो है, ये दिस इज ओपन टू यू पीपल कि आपके हिसाब से अब क्या होना चाहिए इसमें, ये बताएं। दिस इज द केस, आप लोग को पता भी होगा, ये आप लोगों ने भी पेपर में पढ़ा ही होगा। तो ये है केस, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या इससे क्या रिसर्च प्रॉब्लम निकल के आ सकती है, और क्या मेथोडोलॉजी हो सकती है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। The floor is like open. Yeah, and then we'll come to the second case. ये case discuss कर ले, फिर हम second case पे आएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ आप लोग के रिप्लाईज का और आपके आंसर्स का कि जी you people, हाँ जी, yeah. Ma'am, I think it should be qualitative. Research can be done on this. Sorry, Ghanshyam ji. Can we plan in this case? Right. I think qualitative research will be better than quantitative. Okay, and in terms of qualitative research, what Ghanshyam ji, what should be the research problem basically here? Actually, madam, I am not in this economic ground. I basically my field is yogic science. Oh, acha. So maybe just Can yogic science be like, can we relate yoga to monetary policy? Can we? If you say the psychology aspect comes in any field, psychology aspect can come like stress, anxiety, blah blah blah. So if we can cool our mind in any field of the educations, so I think qualitative will be better than the quantitative data. I personally feel actually. Okay, fine. Okay, so okay, Ghanshyam ji says that it should be qualitative. I'm so sorry, Ghanshyam ji, I did not take a case which was related to yoga because I was not aware that people from yoga would also. So, yeah, please, कोई और जो है जो थोड़ा सा जिसने प्रबंधन या अर्थशास्त्र या हाँ जी, अनुसुईया जी। Hello, ma'am. Good morning. Hi. Yeah, morning. Ma'am, actually, I think like it should be a quantitative data. Yeah, ma'am. I think like it should be quantitative data because all the data related to like RBI or banking sector where the monetary and fiscal policies has been applied. So that is the secondary data which has been collected by the RBI or the government itself. So I think like we have to like we can work if we have to put some research questions on this one, so we can utilize the quantitative data instead of qualitative data. Okay, so it is like one each. All right. And Anusuya, can we have a research problem from you as well? Like, can we have a research problem? Like, which area of monetary policy or this would you like to work on? Ma'am, actually, I missed the last part because I'm also taking the classes right now. So I missed the last part, like when you have discussed. But I'm also an economics lecturer, so that's why I feel like one morning we are coming across with this
monetary policy, yeah, definitely we can bring some qualitative data as well, but depending if we are going for a primary survey in this one. So agar hum नहीं तो if we अनुसुईया go for इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या like बनेगी, मतलब यदि यदि तुम्हें मतलब तुम्हें अपने किसी स्टूडेंट से इस पे यदि काम करवाना होगा तो तुम क्या इसमें अपना प्रॉब्लम क्या दो, मतलब क्या तुम एक प्रॉब्लम क्या सोच सकती हो जो इससे अपन निकाल सकते हैं? मैम एक लास्ट वाला आप मुझे एक बार रिपीट करेंगे तो मैं एक बार हाँ आपको जी, प्रॉब्लम बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें बिल्कुल। रेज कर सकती हूँ। इसमें लास्ट में मैं ये बता रही थी कि जो फ्लेक्सिबल टारगेटिंग जो है इन्फ्लेशन की गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी 2015 में, आरबीआई ने एक्चुअली ये साइन किया था और इसमें टारगेट रखा गया था 4% का, और इसमें आपको मार्जिन दिया गया है 2% का। तो आप मीन्स द इन्फ्लेशन कैन वेरी बिटवीन 2% to 6%, and from 2015 till 2019 it was under that. But after 2019 the rate of inflation has gone up, barring in September 2020 उसमें 5.45 या 5.85 ऐसा कुछ था इन्फ्लेशन का रेट। तो ये भी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी एक तरफ वो कर रहा है, दूसरा मैं लास्ट में मैं ये भी बता रही थी कि जब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम किया गया है, द मेन रीजन फॉर द गवर्नमेंट फॉर द RBI to do that was to generate as much liquidity in the market as much, means they are promoting the banks to give loans basically. Now the banks have like data ये बता रहा था कि करीबन 8 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन रुपए जो है इस वक्त RBI के पास है बैंक्स के, जो उन्होंने रिवर्स रेपो उस पे रख रखा है, जिसपे उनको मात्र 3.35% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट उसके बावजूद वो उसमें उन्होंने रख रखा है और वो लोन्स नहीं दे रहे हैं क्योंकि एनपीएस का डर है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का डर है आपके उनको। तो वो तो मतलब ये क्या ये एक मतलब एक आपके पास एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कर पा रहा है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी इज कंट्रोल कर पा रहा है। ओके हाँ, yeah, so this was the basic idea, yeah. So any ओके problem that comes to your mind, Anusha? या Or should I give you like you can think about it and let me take some other श्योर let me मैम take श्योर some other views and then श्योर मैम I'll come श्योर back to you. Yeah, yeah. ओके मैम Uh, फाइन थैंक यू सो मच मैम yeah, थैंक्स yeah, yeah. Uh, Yeah. Hello, ma'am. हाँ जी, yeah, hi नीरज। या हेलो मैडम। मैडम इस पे जो एक आप बता रही ना कि क्या हमारा टॉपिक हो सकता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, इसका बैंकिंग सेक्टर पे क्या इफेक्ट है? Okay, so effect of monetary policy on banking sector, ठीक है, ओके। इस पे स्टडी हो और सकता क्या हो सकता, ओके, वेरी गुड। और आपके हिसाब से क्या हो सकता है, लाइक आप क्वांटिटेटिव डेटा के साथ जाना चाहेंगे, क्वालिटेटिव रिसर्च के साथ जाना चाहेंगे, या दोनों को मिलाना चाहेंगे? मैडम इसमें मैं तो दोनों को लूंगा, क्योंकि अच्छा, क्वांटिटी बैंकिंग सेक्टर्स के हिसाब से लेंगे, क्वालिटी जो है पब्लिक के हिसाब से होगा। अच्छा, तो आप जब यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर कह रहे हैं तो उसमें साथ ही साथ आप कस्टमर परसेप्शन भी जानना चाहेंगे? जी जी ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। ऑल राइट, ठीक है, धन्यवाद आपका। और कोई? चलिए, अभी तो हम लोग एक एक पे खड़े हैं, लाइक घनश्याम जी क्वालिटेटिव कह रहे हैं, अनुसुईया जी क्वांटिटेटिव कह रही है, नीरज दोनों की बात कर रहे हैं। हु एल्स? हरीश जी ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि अटेंडेंस लिंक शेयर हुआ कि नहीं हुआ। बनवारी लाल जी, यू आर फ्रॉम साइंस, ओके।
wants to आप में से और कोई है जो शेयर करना चाहेगा? If I could just get this thing, give me a second. Yeah. Okay. Urvashi or Shailendra, if anybody just can share me that the teachers who are participating, like my fellow, they are from which areas? वो थोड़ा सा यदि मेरे को clear हो जाए. Basically, it's a multidisciplinary. They are from humanities maximum, but some of them are also from science background. The humanities comprises of psychology, sociology, economics, and even geography. Faculty members are associated with us. Okay, fine. Okay, right. So I now have to think of a case on I have to think it like that. Okay, before I move to the second case, though it was from the tourism thing. Now here, when we are talking about this entire problem, with due apologies to the people from the science background and people from geography and other fields, ये जो हमने लिया है, ये जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो हमने अभी केस किया है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि आप प्योरली एक क्वांटिटेटिव जो है रिसर्च हो ही सकता है, जैसा अनुसुईया ने कहा या तिवारी जी ने कहा कि आप बिल्कुल आप बैंकिंग सेक्टर पे आप देखिएगा कि क्या इसका मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. अच्छा, इसका चूंकि हम अभी मॉनेटरी पॉलिसी और लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं, तरलता की बात कर रहे हैं, तो इसका जो है आप एक चीज जो मैंने अभी कही थी कि आरबीआई ने आपको लोन्स के सिलसिले में मोरेटोरियम भी दिया था आपको, loan moratorium was also given for 3 months. Now, there can be a psychological study here regarding that. What impact has this had on customer behavior? जो कस्टमर बिहेवियर है उस पे क्या फर्क पड़ा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, दैट कैन बी ऑल्सो स्टडीड. तो वहां पे यदि आप कस्टमर बिहेवियर की बात करेंगे तो फिर वो क्वालिटेटिव रिसर्च ज्यादा हो जाएगा और क्वांटिटेटिव भी यूज करना पड़ेगा. तो बेसिकली हम जब करते हैं ऐसे प्रॉब्लम सब हम लेते हैं, यदि आप केवल और केवल मैक्रो लेवल पे बात करना चाहते हैं, if you're doing it at the macro level, like if you're wanting to do a macro level study, then I think so we will be going with the quantitative method. We'll be going with the quantitative method, because वो फिर आप डेटा का देखेंगे कि भाई जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है उसका बैंक्स पे आप देख लीजिए कि क्या इफेक्ट पड़ा है, रियल एस्टेट पे जो है वो व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ इट, यू कैन सी इट ऑन द एमएसएमई सेक्टर की क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसका, और आप यू कैन गो विथ ऑल दोज थिंग्स. You can take it at say more micro level if you're talking about, or at the customer level, if we want to study it, then you can see that you can then look into the impact of say the money supply, and you can then look at consumer behavior. You can look at the small traders. You can look at the impact on sole proprietors that you have. तो वो आप देख सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे हमने इन्फ्लेशन को लेकर चले हैं, हमने जो है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन का एक तो पूरा क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है कि आप देखते हैं कि जहाँ पे आप बास्केट ऑफ गुड्स की बात करेंगे और आप फिर उस हिसाब से आप
अपना रिसर्च प्रॉब्लम बनाकर और आप देखेंगे कि क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। तो आप बास्केट ऑफ गुड्स का बेसिकली यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि आप वेट देखिए और आप बताएं कि किन गुड्स में ज्यादा हो रहा है, किन गुड्स में कम हो रहा है, एंड देन यू कैन यूज रिग्रेशन एंड उसका आप पूरा करके देख सकते हैं। आप फोरकास्टिंग जो है वो फोरकास्टिंग के जो टूल्स हैं आपके पास वो आप जैसे अरीमा है और भी है, वो आप लगा के देख सकते हैं कि भाई आगे क्या फोरकास्ट होगा, एंड वो आपका हो सकता है। You can also have a very qualitative aspect to it and जैसे घनश्याम जी ने कहा कि भाई स्ट्रेस एंड एंजाइटी जो है वो आपका जुड़ा हुआ होता है, एंड ये मेरे ख्याल से इवन to relate this, but like if you are into say psychology and stuff like that, then आप हमेशा एक qualitative study देख सकते हैं कि जो individuals हैं उन पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिविजुअल्स पे क्या है और उनका मेंटल हेल्थ जो है वो किस तरीके का रहा है, क्योंकि देयर हैज बीन अ राइज इन सुसाइड्स एज वेल। अभी जो है काफी सारा सुसाइड्स का रेट जो है वो बढ़ गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। उसके कई कारण हुए हैं। वन ऑफ द रीजंस इज आल्सो फाइनेंशियल, like finances is also one of the reasons for that. So आप उसको उस तरीके से जोड़कर, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव की आप पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, फिर आप यहाँ पर जो है यू कैन ऑलवेज लाइक व्हाट, ये एक बार आपका आपने once your objectives have been decided, this is very, very necessary that you decide this. So this has to be crystal clear. आपने यदि एक बार ये कर लिया, then you go for the then you look at data required to substantiate the argument. And this is irrespective of whether you're from science or from social sciences. This is what you need to do. So what you are doing, and then you substantiate the argument, and then you go for then you choose the method that you want, that whether it will be the quant method or the qualitative. Even in quantitative, like again a question for you people, like खासकर जो social science के लोग हैं, उन्होंने ये सुना है, पढ़ा है, यूज किया होगा, ये क्वांटिटेटिव मेथड में आता है, क्वालिटेटिव मेथड में आता है। गिनी कोएफिशिएंट, जिनी कोएफिशिएंट, जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हैं इसको, ये आपके उसमें आता है कि yeah, Mishra ji, I'll come to the chemical analysis. I'll try to do that. Gini coefficient is a quantitative method or a qualitative method? Quantitative, ma'am. Yeah, I suppose Anusuya has opened the mic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'm here. Yeah, ma'am. It's a quantitative method. It's a quantitative method. Why do you say that it's a quantitative method? Because a lot of people use it for qualitative research. Because ma'am, we need the past, past data to mathematically build the Lorentz curve by utilizing to measure the inequalities here. So that's why, like to measure the inequalities, we cannot do it in one point of time. We need over a period of time. We have to check whether there is a inequality is there or not. So I think like it is a quantitative method instead of qualitative method. Okay.
Anybody who disagrees with what Anusuya has just said? Is there anybody who disagrees with what she said? आप में से कोई है जो उसने कहा है उससे एग्री नहीं करते हैं? Yeah, somebody's okay. Yeah, like again, ये बड़ी ही क्या कहना चाहिए कि जब हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो आप जब डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए डेटा आपको दोनों ही टाइप के रिसर्च में चाहिए होता है, चाहे आप क्वांटिटेटिव करें चाहे आप क्वालिटेटिव करें, आपको दोनों में ही आपको आप कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स तो आप कलेक्ट करेंगे ही. Basically, Anusuya, so sorry to be disturbing you again and again, but you are the one who is speaking. What basically, according to you, is the difference between a quantitative research and a qualitative research? I'm so sorry to sound like a teacher, to a teacher, but yeah, I can't help myself. Yeah, what is the basic difference? Just a second, ma'am. Just give me a second. Yeah, sure. Ma'am, like a quantitative method, like where we are going to, we are having a, what can I say? We have the secondary data, and in qualitative method, like we have, we can use a Likert scale to, to collect the data. So we have the qualitative data, like sometimes like whether related to something. If I'm talking about the pandemic has how the pandemic has impacted the people's life. So someone's life has been impacted strongly, badly, right? Someone's life has not been impacted much. So we can use a Likert scale to collect the qualitative data. So the method which we are using here is Anusuya, I'll just correct. Yeah, Anusuya, so sorry to barge in. I'll just correct you on a small correction. Yeah, and बुरा लगे तो बुरा लगा लेना, but थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ कि Likert scale तो एक टेक्निक हुआ ना. Likert scale तो आपके पास एक टेक्निक हुआ. Like I'm just asking this one. नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि देखिए Likert स्केल तो एक टेक्निक हुआ कि जैसे आप जैसे जो कह रही हैं, जैसे बिहेवियर के लिए हम जनरली 7 स्केल Likert या 5 स्केल Likert यूज करते हैं कि भाई आपने उसको अग्री टू डिसएग्री वाले उस पे लेकर आ गए और आप नए सवाल पूछे. तो आपने जैसे प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया, तो फिर क्या हम उस पर क्वांटिटेटिव मेथड लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? हाँ घनश्याम जी. Yeah, what I think actually, when we collect the data for qualitative purpose, their methodology is to collect the data like through observation, through interviews. So there no need for the numerical values, so we can do any type of test. We can description way we can give our results, but in quantitative you need to measuring tools. That tools gives you the some numbers, and through numbers we want to try both of the things. Like through numbers we want to say that qualitative as well as quantitative, both the side. If we do, I think this is a major difference between quantitative data. Ghanshyam ji, like when you are doing your research in yoga, and आप तो खैर ये सारी चीजें आप लोग तो साइकोलॉजी बहुत पढ़ते हैं योगा में, तो आप लोग जब आप डेटा आप लोग फोकस ग्रुप भी यूज करते होंगे, या आप लोग ऑब्जर्वेशंस भी, आप ऑब्जर्वेशंस इंटरव्यूज ये सारे तरीके से आप करते हैं, तो क्या आप इसको कभी डेटा को क्वांटिफाई करते हैं कि आप उसको केवल एक ऑब्जर्वेशन को एक ऑब्जर्वेशन ही रहने देते हैं और फिर उसके बाद आप उस पे you try to build a story on that? पहले मैंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर एक एब्स्ट्रैक्ट तैयार करते हैं,
एंड उसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे भी जाते हैं, उसी चीज को बेसिकली टूल्स के माध्यम से चेक करते हैं कि वेदर दे आर थिंकिंग राइट और व्हाट एवर स्टैटिकल टूल सेज। सो बोथ द वे वी मेजर। क्योंकि देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट आप लोग लगाते हैं, जैसे साइकोलॉजी में बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं जहां पे आप क्वांटिफाई करते हैं, है ना, कि आप क्वांटिफाई करते हैं, जैसे आप स्ट्रेस लेवल की ही बात कर लीजिए या एंजाइटीज है, तो आप जो साइंस वाले हैं वो उसमें बताएंगे कि आप जैसे जोशी जी हैं, मिश्रा जी हैं, मिश्रा जी, you are from chemical analysis, let me get you here as well, like let us get into a discussion. Yeah, Mishra ji, you like if you and Ghanshyam ji need to do a test together, like you want to do a research together about the stress levels because of the pandemic. So he will be using a more psycho analysis, and I suppose you can do a chemical analysis there, Mishra ji. Ma'am, very sorry to intervene in between. Yeah. I'm very sorry to intervene in between. I kindly request all the participants to kindly please mute yourself when our eminent speaker is answering your questions. Otherwise, it is creating a lot of disturbance. I repeat, I request all the participants to kindly please mute yourself when our eminent speaker is answering your questions. Otherwise, it's leading to total disturbance. Ma'am, please continue. Yeah, thank you. Yeah, Mishra ji, you were saying something. Please continue. Mishra ji, आप कुछ कह रहे थे, please. जैसे हमें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है किसी मॉलिक्यूल का, उस समय हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, जो आप बताएंगे। हाँ, तो नहीं, तो आप जैसे है, आप मिश्रा जी, आप तो लोगों का केमिकल का जो आप करेंगे, तो ये आप क्वांटिफाई करेंगे या आप क्वालिटेटिव ले रहे हैं? मैडम हम क्वालिटेटिव ले रहे हैं। मैडम इधर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जैसे पैंडेमिक जो हुआ कोरोना में, हमने एक सर्वे किया एंड वी फाउंड पीपल आर वेरी मच एंजाइटी ड्यूरिंग द कोविड-19, राइट? So previous study says that when any person very much anxiety or stress is having, then cortisol level will be high. So for cortisol level, we have to go for measuring the tools. Then only we can say, yeah, during the pandemic 19 that stress was high. Otherwise, we cannot communicate with both the things. This is the my. यही चीज घनश्याम जी, this is what I was also trying to understand from Mishra ji. That is why I brought in Mishra ji. Like Mishra ji, you said it is qualitative. Can you please explain? I did not understand the qualitative part in what you were saying. Please. I think so. Mishra ji is facing some technical issue. Mishra ji, if you could, if it is not too much for you, then you can please write in as well. यदि आपको वैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि yeah, so basically the reason I was asking, like if Mishra ji, your sound becomes fine, you can always come in and answer. What Ghanshyam ji is also trying to say, and that is what I was like, you know, you have to understand that जब आप when you people are doing research, and मेरे ख्याल से आप लोग को ये सब चीजें पता है, फिर भी आप लोग FDP कर रहे हैं, that you have to have a combination there, because merely stating a thing will not work. Like everybody knows that during the pandemic there has been an increase in stress levels. Whether I relate that to the monetary policy, I can do that as an economist. I can always go for behavioral studies and I can look at it. Shailendra here is he's an expert on behavioral economics and he understands that. So he can correct me as well that you have so many so many theories going around for behavioral things, and you can understand that. और वहाँ पे आप behavioral study को जब आप behavioral study कर रहे हैं, तो फिर आपको कई चीजें quantify करके भी बतानी होती है कि भाई है, क्योंकि qualitative चीज एक
आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं बट अब जैसे आप स्ट्रेस लेवल्स की ही जैसे घनश्याम जी बता रहे हैं कि भाई स्ट्रेस लेवल्स बढ़ गया है, तो स्ट्रेस लेवल्स जब आप कैसे पता करते हैं कि किसी का स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है? So there has to be some parameters on which you are measuring that. So the parameters on which you are measuring that becomes quantitative, and that can be done through science as well. Like of course, a chemical analysis can be done of people to see that which again, Mishra ji can help me there. I am very poor with my science, but say whatever there must be some chemicals which increase the levels, which go up, which causes anxiety, and the blood pressure might go shoot up. I might have headaches, I might have nausea, I might feel like my palpitations might be high. So there has to be some chemical thing. Now, there was one thing that I was really trying to understand from, but I suppose there was some technical problem. Ki Mishra ji said qualitative. Now, वो मेरे दिमाग में कहीं वो बात रह गई है अभी कि वो qualitative चीज वो क्या कहना चाह रहे थे. So Mishra ji, if we can try once more whether your audio is working or not, और ये हम देखें उस चीज को, because वो मेरे दिमाग में कहीं रह गई है. Okay, fine. So this is what I was trying to say. Now, a second case that I wanted to discuss here, which again, I'll be talking to you in terms of economics, and you can always relate it to your own subjects and see whether you can have a story out of it for you people there or not. Now, the second case that I wanted to discuss was about the tourism industry. Now, again, this is one industry which took the worst hit during the COVID, the tourism industry. Now, सबसे ज़्यादा जो है इस industry पे effect हुआ है in data terms, मतलब quantitatively यदि हम उस चीज को देखें तो देखिए GDP में यदि हम direct contribution की बात करें tourism and hospitality की, तो that is $98.17 billion. This is the data for 2018. 2019 में tourism travels का contribution was 269 billion था. Leisure spending, इसमें से यदि हम revenue की बात करें तो leisure spending was 6% and the rest was from business spending that was coming. Employment generated was 6.36 million. 2014 और 2019 के बीच में जो generation हुआ, मतलब employment रोजगार जो हुआ वो 6.36 million का हुआ. केवल 2020 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, दैट इज 2019-20, तो 8% जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% केम फ्रॉम दिस सेक्टर. प्री कोविड मतलब यदि हम मार्च 2020 के पहले की बात करें तो इनबाउंड टूरिस्ट जो है वो 10 मिलियन था और जो जा रहा था वो 26 मिलियन लोग हमारे यहाँ से जा रहे थे. अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है टूरिज्म के तरफ से, कल के पेपर में, कल बिजनेस स्टैंडर्ड में एक न्यूज भी थी इस सिलसिले में कि वो लोग चाह रहे हैं कि स्पेशल इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए टूरिज्म को, ताकि बजट में मांग कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से कि टैक्स रेट्स वगैरह कम किए जाए. और उसके पीछे उन्होंने ये आंकड़ा दिया है कि 1/4 ऑफ टोटल रूम इन्वेंट्री में बी ऑन द ब्रिंक ऑफ क्लोजर, यानी कि जितने भी कमरे हैं उनके पास इस वक्त, उसमें से 1/4 जो है वो उनको बंद करने पड़ेंगे, उतने लोग ही नहीं आ रहे हैं. हर 10 में से 4 होटल जो है वो बंद होने के कगार पर खड़े हैं. तो ये कुछ फैक्ट्स फिगर्स हैं. और आप क्या इसमें से क्या रिसर्च हो सकता है, पॉसिबल रिसर्च हो सकता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, किस तरीके का एनालिसिस हो सकता है. आप प्राइमरी डेटा बेसिस पे जाएंगे, आप सेकेंडरी डेटा बेसिस पे जाएंगे, क्यों जाएंगे? तो ये कुछ सवाल है. और ये मेरे ख्याल से एक ऐसी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री विच इज अगेन, मतलब मेरे ख्याल से आई हैव सीन अ लॉट ऑफ साइंस पीपल राइटिंग वेरी गुड पेपर्स ऑन दिस, बिकॉज बहुत सारी डिजीजेस और उन सब का जो है वो ये इश्यूज है, क्योंकि
there was I'd read a paper a few years back which said that जो earphones हम लगाते हैं वो सबसे ज्यादा मतलब वो सबसे ज्यादा contagious जो होता है वो earphones के साथ होता है और उसमें था कि ये जो आप जब आप hotels वगैरह में जाते हैं और आप जो आप अपने रखते हैं आप अपने earphones कहीं पे भी रख देते हैं तो वो बहुत ज्यादा diseases जो हैं वो communicable diseases जो हैं वो बहुत ज्यादा उससे होती है तो that was one study if I like of the cuff that I remember जो मैंने पढ़ी थी इस सिलसिले में तो ये एक again a case is there in front of you and now again the floor is open which way do you want to analyze this and if I can have Banwari Lal ji you are from in science you are from which stream if I may know Banwari Lal ji, if you could just let me know from which area of science do you come? Zoology, ma'am. And anybody who's okay, so Banwari Lal ji, if you are from zoology, then क्या आपका tourism industry के साथ है कुछ आप लोग का? No, ma'am. आप zoology में ही आप लोग शायद fish culture वगैरह पढ़ते हैं? जी 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 तो आप लोगों ने कभी आपको कभी ये नहीं लगा कि जो आप लोग फिश कल्चर करते हैं उसके कंजम्पशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है और ये टूरिज्म वाले कितना क्या खपत करते हैं नहीं करते हैं? नो मैम हम केवल बायोलॉजिकल उसमें करते हैं जैसे फिशेस के बायोलॉजी के रिप्रोडक्शन टाइप के उसमें करते हैं अच्छा चलिए मैं इसमें से मतलब मैं चूंकि खैर मैं आपसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बात कर रही हूँ पर मैं आपसे थोड़ा सा if the hosts allow me I'll just give an anecdote of 1 minute 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगी अपनी कहानी के लिए if the hosts allow me am I allowed Shalin and Definitely ma'am, please ma'am, continue. yeah thank you so much बनवारी लाल जी हो सकता है आप बनवारी लाल जी आप किस स्टेट से हैं? उत्तराखंड मैम उत्तराखंड अरे उत्तराखंड में तो आप लोग मेरे ख्याल से ट्राउट्स की बहुत सारा कर रहे हैं ट्राउट्स की कर रहे हैं या इट्स नॉट ट्राउट मेनली ट्राउट्स का हाँ जी ट्राउट्स का आप कर रहे हैं आपको जो मैं किस्सा बता रही थी आप शायद उसको अपने जगह पे भी इस्तेमाल करके देखिए शायद आपके कहीं काम आए मध्य प्रदेश का जो हमारा मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश का हमारा जो स्टेट फिश है दैट इज देखिए नाम भूल गई मैं चलिए वो ढूंढ लेंगे हम जो हमारा स्टेट फिश है वो उसकी पैदावार बहुत कम हो गई थी और वो एंडेंजर्ड में चला गया था और उसको वो केवल और केवल जो ये गैस आते हैं बड़े गैस जो आते हैं उनको दिया जा रहा था और उस पर नहीं काम हो रहा था तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट्री है और एनवायरनमेंट है MOEF जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और इस प्रोजेक्ट के महाशीर है हमारे यहाँ का स्टेट फिश तो महाशीर के कंजर्वेशन के लिए ये काम चालू किया और फिर उसका ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चल रहा है मेरी फ्रेंड जो है उसको हेड कर रही है इस वक्त तो वो zoologist है बेसिकली शी इज अ लिम्नोलॉजिस्ट तो वो काम कर रही हैं उस पे और वो फिर वहां से कैसे आप उसको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है वहां पे किया जा रहा है दैट्स अ वेरी गुड केस स्टडी तो मेरे ख्याल से और इसका टूरिज्म के साथ भी बहुत बड़ा है क्योंकि आजकल ये जैसे जितने भी ये जो ऐसे फार्म्स या ऐसे कोई एंडेंजर्ड स्पीशीज या ऐसा होता है इसके साथ कहीं ना कहीं टूरिज्म स्पॉट्स को भी डेवलप किया जा रहा है और गवर्नमेंट अभी जो गवर्नमेंट का जो नया टूरिज्म की पॉलिसी आई है इसमें भी गवर्नमेंट इकोलॉजिकल टूरिज्म पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है तो मेरे ख्याल से बनवारी लाल जी वहां पे आप लोग बड़े काम के लोग हो वहां पे हम जैसे लोग जो है हम लोग केवल पैसा गिन सकते हैं वहां पे आप लोग बड़े you people can contribute a lot there. Yeah, man. Yeah, so that was okay. Somebody who is from geography. Is there anybody who is from geography here? Who is from geography? And again, this case is open to you. The tourism thing, like this is one angle of tourism that I spoke about, and what can be the other? Like, what can be your research problems? How do you solve it?
you might find you might find that I'm not talking to you in concrete terms that which method to use and which software to use, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि FDPs पे SPSS और इन सब की बहुत बात की जाती है. Very very important. These tools are also, like, these softwares are also important, but I always firmly believe that if you're conceptually very correct, if you know the concepts, then you can go ahead and you can work on it. So yeah, anybody who's from geography who can help me out, and please go ahead and let me know. मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग जो है, घनश्याम जी इस पे योगा तो बहुत अच्छा स्टडी कर सकता है टूरिज्म के ऊपर, क्योंकि जी डेफिनेटली मैम, लेकिन सॉरी टू से मेरा नेटवर्क चला गया, तो मैं केस सेगमेंट पूरा मैं नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं वो कर पा रहा हूँ कि कौन सा था जिसमें क्वालिटेटिव क्वांटिटी जाएगा. लेकिन टूरिज्म में मुझे लगता है दोनों ही चलेगा, जैसे अपनी बात हुई लास्ट में, दोनों ही साथ में साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. अच्छा, आप इसको यदि योगा साइंस के हिसाब से आप करना चाहेंगे, तो यदि हम इसको डेवलप करें, यदि आप मेरे को बताते चलें कि एक आप इसमें क्या रिसर्च प्रॉब्लम लेना चाहेंगे और इसको हम किस तरीके से डेवलप करें. हम प्योरली योगा की तरफ से हम टूरिज्म को ले रहे हैं घनश्याम जी, तो प्लीज आप मेरे को रिसर्च प्रॉब्लम बताएं. मैडम, जहां तक टूरिज्म एंड योगा है ना मैडम, एक्चुअली अभी जो सिनेरियो है वो उनको जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं वो पर्टिकुलर उनको इससे मतलब नहीं है कि उनको कितना मतलब फिजिकली अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो सही हो रही है कि नहीं हो रही. वो they want to do meditation, they want to do only asana, only pranayama, which they heard about that. That is why हर एक रिसोर्ट में आजकल आप देखेंगे एक स्पा के अंदर भी योगा आ चुका है. इसीलिए आ चुका है कि टूरिस्ट लोग पसंद करते हैं कि सुबह का समय सेशन मिल जाए. लेकिन योगा सिर्फ आसन प्राणायाम और मेडिटेशन नहीं है मैडम, ये इज अ वेरी वास्ट थिंग. तो इसके अंदर टूरिज्म अगर लाएंगे तो अभी तो सिर्फ इतना ही ला सकते हैं कि किस तरह से इनको अट्रैक्ट किया जाए, और हाउ मेनी टूरिस्ट रियली वांट्स in their hotel like yoga hall should be there or not. हम इसमें सर्वे कर सकते हैं कितने बाहर के लोग आते हैं, वो इसको सर्च करते हैं कि वहां पे योगा हॉल है कि नहीं है, या योगा इंस्ट्रक्टर्स है या नहीं है होटल्स के अंदर. पहले हम लोग सर्च करते थे सिर्फ होटल कैसे है, लेकिन आजकल आप देखेंगे बाहर के टूरिस्ट प्लेस वो देखते हैं कि वो सुबह मतलब वहां पे योगा हॉल है कि नहीं है. तो जी बिल्कुल, तो ये भी एक सर्वे स्टडी हो सकती है. ये जो मैंने ये अच्छा, अब चलिए ठीक है, आपका प्रॉब्लम तो हो गया. अब आप मेरे को बताइए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें. घनश्याम जी, मैंने पकड़ लिया आपको. नो प्रॉब्लम, तो मेरे सीखने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं. जी ऑब्जेक्टिव मैडम इसमें हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन टुवर्ड्स योगा इन टूरिज्म. इसको पीपल के जगह पे यदि हम टूरिस्ट कर दें तो टूरिस्ट करते हैं, या इंटरेस्ट ऑफ द टूरिस्ट टुवर्ड्स योगा. ठीक है, एक तो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, और क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है? और हो सकता है मैडम अभी एकदम से क्लिक नहीं कर रहा है. चलिए, अच्छा, यदि हम इसको कहें कि एक हम ये देखें कि एक ऑब्जेक्टिव मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ, आप प्लीज बताइएगा सही है कि नहीं है, कि yoga as a source of culture. Culture, yoga as a source of culture.
प्रोपोगेशन वर्ड यदि मैं लिखूं यहाँ पे, पता नहीं ये शब्द सही है कि नहीं, कि मतलब हम यदि अपना अपना कल्चर, क्योंकि अभी तक हम वेस्ट का, हम एरोबिक्स जो है वो वेस्ट से आया और हमने वेस्ट का कल्चर साथ में हम उसके साथ लेकर आए, तो हम यदि योगा को हम इंडियन और या एशियन, क्योंकि केवल इंडिया का नहीं है योग, तो हम ये एशियन जो ईस्ट एशिया है उसको, उसका कल्चर का प्रोपोगेशन करना चाहें तो ये भी मेरे ख्याल से हम स्टडी कर सकते हैं। हाँ? एक मेरा योगा एटीट्यूड्स हो सकता है, योगा एटीट्यूड, हाउ मच टूरिस्ट हैव योगा एटीट्यूड। ओके, वेरी गुड, योगा बात है। एटीट्यूड या अवेयरनेस, व्हाटएवर। हाँ जी, हाँ ठीक है, हाँ एटीट्यूड वर्ड यूज कर लें या हम अवेयरनेस वर्ड यूज कर लें। चलिए 3 ऑब्जेक्टिव बहुत है। अब ओके घनश्याम जी, थैंक यू, आपको मैं थोड़ा सा विराम दूंगी, मैं दूसरों को भी परेशान करती हूँ अब जरा। दया जी, आई कैन सी दया जी हियर। Banwari Lal ji, I'll be coming to you next. Don't worry, huh? You intrigued me. Sure, ma'am. Sure, ma'am. Yeah, sure. Daya ji, if you can listen to me. Daya Yadav is there on my screens. Okay, let me see how many people. Deepa Singh is there. Bhanu Joshi is there. Rashmi is there. They aren't saying anything. Sachin Rastogi ji is there. Anybody else who wants to volunteer about the methodology part? Anybody else who is from the Mishra ji, what a lovely thing on which you are working. Yeah, somebody who needs to volunteer, because otherwise I'll speak with Ghanshyam ji only. Because if ये यदि आपने ये objectives देखे और इनके फिर हम methods के ऊपर बात करें, कि अब हम methods की बात करें, अब methods के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हम data क्या है हमारा। अब ये जितने भी हमने तीनों objectives लिए हैं, यहाँ पर हमको we have to go for primary qualitative survey. Yeah. Sorry, somebody was speaking. Yeah. Qualitative method we have used here. Yeah, it's you. Okay. Yeah. Qualitative. What you are saying that we'll go with qualitative, Anusuya. Qualitative research. What would you want to establish? Like ये जो objectives है, इसके लिए आप यदि obviously primary survey ही करना पड़ेगा, इसमें और कोई आपके पास तरीका नहीं है इसके लिए data collect करने का। इसके बाद आप method कौन सा या कौन सा tools use करेंगे, कुछ idea इसके बारे में, कि which tools will you use? मैडम इसमें इंटरव्यू टूल्स आल्सो वी कैन हेल्प, और क्वेश्चनर आल्सो वी कैन हेल्प। हाँ, प्राइमरी सर्वे जब आप करेंगे जी, बिल्कुल आप क्वेश्चनर के लिए चले जाइए, आप शेड्यूल ले लीजिए या आप इंटरव्यू कर लीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप इसमें ऑब्जर्वेशन इज नॉट ए, आई डोंट थिंक सो ऑब्जर्वेशन विल गो विद दैट। नहीं, इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं वर्क करेगा, ऑब्वियसली नॉट। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, यदि आप ऑब्जर्वेशन मेथड यूज करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। बेस्ट है कि आप क्वेश्चनर करवा लीजिए, इंटरव्यू कर लीजिए। आप फोकस ग्रुप चाहिए तो आप फोकस ग्रुप भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि जब बड़े बड़े टूरिस्ट के जत्थे आते हैं फॉरेन से, तो आप फोकस ग्रुप भी कर सकते हैं उनके साथ और आप बात करके देख सकते हैं, तो आप पूरा रिकॉर्ड करके आप यू कैन गेट सम वेरी गुड रिजल्ट्स देयर। क्योंकि बेसिकली देखिए, अब आप ये जो इन्होंने अभी लिया है, ये जो पूरा हम प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, इसमें 2-3 लेवल्स है जिसपे ये काम हो सकता है। When you are talking here, the levels that we are talking about, and I lost my pen. Okay. Now the levels that I'm talking is that one is a sociological or sociological survey. You can see. You can go for a demographic study.
You can have a demographic study here. कि Uh, कौन सा एज ग्रुप, हाँ सॉरी, क्या, गो हेड. yes, ma'am. We can also go for ethnographic research because we have included culture over here. Right? Yes, so good, thank you. Yeah, ethnographic जो है, ethnographic studies की यदि हम बात करें तो we can go for ethnographic studies as well, because obviously these are two things which I suppose people from geography and सोशियोलॉजी बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लोग सोशियोलॉजी के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं, सोशियोलॉजिकल है, साइकोलॉजिकल स्टडीज भी हो सकती हैं इसके अंदर. यू कैन हैव अ साइंटिफिक स्टडी एज वेल, and you can have science people can also go in, and of course economics तो है ही है, हर जगह पे हम लोग पूछ है, हम मतलब आलू है, हम कहीं पे भी आ सकते हैं economics वाले. तो political policy also. Sorry? Political policy. A political policy. Oh, very good, ma'am. Thank you. Lovely. In India right now, this is working very well. हाँ जी, और कुछ? और कोई? And please don't mind my writing. So, yeah, apart from this, ओके, सो अब ये जो है, ये लेवल्स पे एक ये लेवल हुआ. दूसरा लेवल जो है, दूसरे लेवल पे हम जब बात कर रहे हैं कि यू कैन लुक एट दी targeted hotels, because we are talking about tourism here. So the targeted hotels, that means whether you want to go with the 5 stars, wahan pe alag ho jayega. You want to go with 3 stars, you want to talk about resorts, जिनमें से हेल्थ रिजॉर्ट्स भी हैं, आजकल तो हेल्थ रिजॉर्ट्स भी हो गए हैं बहुत सारे, वो आप बात करना चाह रहे हैं. यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक पीपल हु कम फॉर, मतलब कुछ लोग हैं जो रिलीजियस पिलग्रिमेज पे आते हैं, जो रिलीजियस टूरिस्ट होते हैं, वो कई लोग हैं जो ये भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है. हमारे यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म बहुत ज्यादा है, खासकर साउथ वेस्ट से, ये जो अपना अरब कंट्रीज वाला सेक्शन है, वहां से बहुत ज्यादा मेडिकल टूरिज्म आ रहा है. तो ये आपका ये भी एक लेवल है. दिस इज आल्सो वन लेवल यू आर टॉकिंग. नाउ व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू शोकेस ओवर हियर इज दैट we are trying to what here you can do is that you can this entire thing will determine now whether you go for quant, you go for qualitative data research. ये फिर होगा, या आप इन दोनों को मिलाकर आप बात करना चाह रहे हैं. तो this is what basically you have to decide. So this is one case that we took of the tourism industry. These are the facts and figures that we took, and from there you can have so many types of studies depending on what you want to find out and what conclusions do you want to reach to. I was talking to I was talking to Banwari Lalji, and I said that like I would want his participation there. अब वहाँ यदि हम आप जैसे आप zoological studies करना चाहते हैं, और यदि हम आप tourism में आजकल बहुत लोग बाग हैं who are coming to study the flora and fauna, who just come here to study that. So there might be academic travelers, there might be people who are into, yeah, please go ahead. Anglers, ma'am. Sorry? For angling, tourist for angling. Tourist? Angling, fish angling. Please spell out the word that you're saying. Angling. Angling, okay, yeah. Tourist angling, right. So I suppose this is one area which now, if you were doing this work, you would have gone with quantitative research or qualitative research?
Well, I think quantitative research is prominent in our area, but yeah, Okay. a little bit of qualitative research can be done. And what sort of data would you take? What sort of data would you take? Quantitative, Yeah. yeah, maybe the numbers and the procurement of pieces and so on, the size of Okay. pieces, And generally, the what are species, the species okay? of And pieces, sorry to come. Sorry. the species The species that the species that you're talking, the species and the subspecies and so many things. Yeah. That is happening now. If what are the tools that basically you people